Welcome to English classes by Dr. Rajiv. In my last class, I started discussing about tense. I chose this topic because tense is one of the most important grammar aspect for competitive exams, and not only for competitive exams. This tense is important for day-to-day communication skill also. So if you want to speak correct English or you want to write correct English, then this one is required. So that's why I started with tense. So when I started discussing tense, I told you that this word tense has started from or originated from a Latin word, and that Latin word is tempus. Tempus. Now this tempus means what? This means time. All right. So time, what time? So this shows actually, this time shows whether an action happened in the past, in the present, or it will happen in future. So it simply tells about the time of the action. All right. So for this thing, three tenses I told you in the last class, that there is present tense, past tense, and future tense. So in present tense, you can say the simple one is I teach. In the past, I taught, and in future, it is I shall teach. But the thing is that if I say I teach or I taught, I shall teach, things doesn't make very clear. For a clarity, one thing is required. All right. If I say only I teach, what does it mean? I teach means what? Is my action complete? All right. Does it say so? It doesn't say like my action is complete. Now, number one. Number two, what is the status of an action? That is also not very clear. And the third one is sequence of events. That is also not very clear. So it doesn't make sense. It doesn't say about the completion of an action. It doesn't say about the status of an action. And it doesn't say about the sequence of events. So only if I say present, past, and future, doesn't make any sense in communication, or of course it doesn't help you also in competitive exams also. So you have to know all those forms of tenses. Now the thing is that I told you that if the categorization of past, present, or future doesn't make any sense, because it doesn't show the completion of an action, it doesn't tell about the status of an action, and it doesn't show about the sequence of an action. All right, so which action happened first, which action happened afterwards, this doesn't also tell anything about that one. So therefore these three tenses has been further subdivided into simple present, simple, or that is also called indefinite, continuous is also called progressive, perfect, and then perfect continuous tense. So these three tenses have been further subdivided into simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So in this way you can say that we have so many things. So no, there is one simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. In the same way we have simple past, we have past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. The same thing, future, so simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous tense. So all these give you 12 sentences. So if it is an active voice or passive voice, I'll tell you this, discuss it just after some time. इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करते हैं. लेकिन अभी हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, और इन चारों के सब डिविजन्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये 12 स्ट्रक्चर्स हमारे पास में हो गए. ये जितने एक्टिव वॉइस का तुम देख लो, 12 स्ट्रक्चर्स हमारे पास में हो गए. तो जैसे एक हमने लिया है कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टीच. तो इसका हम लोग इस वर्ब को लेकर करके हमने इसको सारे फॉर्मेट में, सारे जितने हमारे पास टेंसेस के स्ट्रक्चर हो सकते हैं उस पर हमने कोशिश किया है कि इस पे डाल दें, ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो जाए. तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट एक्टिव. अच्छा, एक चीज और आपको इसी बीच में बता देते हैं कि ये हमने देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसके 4 सब डिविजन्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो 4 दिन 12 ये हो गए. अब ये हमने देखा एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है. एक्टिव और पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है. अंतर बस यही है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन,
और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो लेकिन जो डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन है, बस यही डिफरेंस है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन में क्या होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ वी आर सपोज टू स्पीक और राइट इन एक्टिव वॉइस, ओके। सो राइटिंग इन पैसिव वॉइस इज नॉट एक्चुअली very much promoted, so it is not desired also or not deserved also, लेकिन in certain cases तो हमारा पैसिव वॉइस भी रिक्वायरमेंट तो होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इन साइंस राइटिंग्स, you can say all passive voice is also there. So most of the time we use this active voice. एक्टिव वॉइस में जो हमारे 12 सेंटेंसेस हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए, 12 सेंटेंसेस हो गए एक्टिव वॉइस के। तो ये एक्टिव वॉइस का टेंसेस तो आपको याद कर ही लेना चाहिए, कम से कम स्ट्रक्चर याद कर लेना चाहिए, ताकि आपको कोई भी लिखने में परेशानी ना हो या बोलने में परेशानी ना हो। लेकिन पैसिव वॉइस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है सो ये भी आपको जरूरत पड़ता है जब आपको यूज करना होता है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप एक्टिव वॉइस में ही या सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन ही हो, सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन भी हो सकता है, तो वैसे केस में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये ऑल टुगेदर हमारे पास 20 स्ट्रक्चर्स ही हैं, ठीक है। 8-12 हमारे पास ये हो गया एक्टिव वॉइस के जैसे, और 8 हमारे पास पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स हो गए। तो ये जो हमारे पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये एक्चुअली 24 होने चाहिए थे, 12 और 12 24, तो ये 24 ना होकर करके केवल 20 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स घट गए। तो अब इसको हमको देखते हैं, हमने कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टीच हमने किया है, एक वर्ब को लेकर हमने ऐसा कोशिश किया है कि सारे के सारा को हमने फॉर्मेट में आपको याद करने में आसानी हो, ऐसा हमने बनाया है। तो एक वर्ब हमने लिया टीच, ओके। तो ये हमने लिया फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट और दे, आई वी यू, ठीक है। जैसे आई है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो गया, अगर यही फर्स्ट पर्सन ये होता ये तो आई प्लूरल हो जाता तो वी हो जाता। वैसे ही इसमें सेकंड पर्सन में यू है तो यू दोनों एक ही होता है इसमें, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। या अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में क्या होगा, ही शी इट होता है, और इसका प्लूरल में हो जाएगा दे। तो ये इसमें चेंज होता है। लेकिन एक बात आपको यह भी ध्यान में देना पड़ेगा, ये जब हमने टीच इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो आई टीच है तो आई टीच है, ठीक है। लेकिन यू है तो यू भी टीच भी ठीक है, लेकिन वी है वी टीच भी ठीक है। ये मामला गड़बड़ कहाँ हो जाता है, दे टीच, ओके, ही टीचेज, शी टीचेज। अगर ये आपको यहाँ पे रहता क्या, अगर सपोज कीजिए आपको यहाँ पे रहता ही, ऑलराइट, तो ही, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको करना पड़ता है ही टीचेज, ऑलराइट। या शी रहता तो शी टीचेज, दे है तो दे टीच, ओके। इसमें दे में ये आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसी से हमने क्या किया है कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, तो आप इसको एक ही वर्ब लेकर के, प्रोनाउन लेकर के चलिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो ये आपका हो गया। तो ये ऐसे बनता है, आई टीच, आई एम टीचिंग कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में आई हैव टॉट, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव बीन टीचिंग। वैसे ही पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में आई टॉट, आई वाज टीचिंग, आई हैड टॉट, आई हैड बीन टीचिंग। और फ्यूचर में एक्टिव वॉइस में आई शैल टीच, आई शैल बी टीचिंग, आई शैल हैव टॉट, आई शैल हैव बीन टीचिंग, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे आई टीच है, ठीक है, आई टीच है, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे चेंज हो सकता है, आई है तो आई टीच है, तो आई टीच है। अगर यू है तो यू टीच हो जाएगा, ही शी इट है तो आपको टीचर्स हो जाएगा यहाँ पे, और दे है तो टीच हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पे आपको चेंज करना, आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग है, लेकिन अगर ये वी होता है तो वी आर टीचिंग हो जाएगा। तो ये इसके साथ साथ अगर मान लो कि यहाँ पे वर्ब, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये चेंज करता है इसके आधार पे। ये है अगर वी कर दिया प्लूरल में, आई का प्लूरल कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर टीचिंग, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे होगा तो वी हैव टॉट, वी हैव बीन टीचिंग, ऐसे ही है ना। ही है तो ही हैज, एक मिनट जस्ट, सो आई टीच, आई एम टीचिंग, आई हैव टॉट, यहाँ पे है आई हैव टॉट। लेकिन अगर यहाँ पे यू है तो यू भी यू हैव टॉट हो जाएगा, वी हैव टॉट, फाइन।
लेकिन यहाँ पे जहाँ पे he है, if I use he in the third person, then it will be he has taught. He has taught. Okay, और she has taught. हाँ, किसी का नाम है सपोज करो राम. Okay, तो राम has taught. Alright, so ये थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, ये हो जाएगा has हो जाएगा, अदरवाइज ये have रहेगा, है ना. फर्स्ट पर्सन रहा तो have रहेगा. तो हमारा जो पहले का सेंटेंस था वो क्या था, I have taught. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने क्या इस्तेमाल किया है. वैसे ही I have been teaching, अगर यहाँ पे she हो जाएगा तो she has been teaching. they है तो they have been teaching. you है तो you have been teaching. alright, so we have been teaching, fine. ठीक है. उसके बाद you, fine, you have been teaching, no problem. you का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों you have been teaching ही होगा. वैसे ही है तो he हो, she हो या it है, ओके, या फिर कोई नाम है तो फिर he, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, he has been teaching. He has been teaching. All right, so if it is she has been teaching. they have been teaching. they है तो have been teaching हो जाएगा. नाम है, ठीक है, नाम है राम has been teaching. it will not be have been teaching. So we have to remember this thing only. All right, so these verbs change in accordance with the pronoun used, noun or pronoun used. So now here it should be I have been teaching, fine. So in this case also, I taught, I was teaching, I had taught, I had been teaching. Okay, so this pronoun, okay, I had taught, I taught, fine, I taught, you taught, we taught, he taught, she taught, it taught, they taught. Okay, so everything is no problem over here. I was teaching, no problem again here. I was teaching. Again we were teaching. Remember this thing. If it is I in the first person, all right, plural, singular number. So if it is we, then in that case we were teaching. Sorry, we were teaching. Okay, so this will be there. We were teaching. I had taught, you had taught, we had taught, they had taught, she had taught. All right, so no problem over here. So problem is here, so you can make changes over here. So this one is I taught, I was. Let us come back to the previous sentence structure. So I taught, I was teaching, I had taught. All right, so if it is the first person, I had taught, singular number, plural number, it will be we had taught. Again second person singular number, you had taught, plural number, you had taught. The third person singular plural, all same. So he taught, he had taught, she had taught, it had taught, all they had taught. Finished, no problem over here. And again I had been teaching. So here also we had been teaching, or it could be you had been teaching, or he had been teaching. Okay, so no problem over here also. In some cases you can get some problems, so you have to change this verb, all right, according to the noun or pronoun you are using over here. All right, so you have to remember this thing only. So this is the only thing you have to remember for this one. Again in this one, I shall teach. All right, fine, I shall teach. So normally we use I shall with I. All right, so this shall says, sometimes you will say that why not should we use this plural, will. All right, actually will, when you use this will with first person, all right, that shows determination. I will do this thing, that is determination, that shows determination. That doesn't say about future. All right, so if you want to say simple future, so in that case it is better to use with I shall. So I with shall, when you use shall with I, that shows simple future. All right, so when you use, जब तुम use करते हो will को I के साथ, I will teach, it means it shows determination. All right, so the thing is that we are not showing determination over here. यहाँ पे हमको केवल ये show करना है कि this in future, I shall teach, simple future. All right, so for the second person and third person, will is required. All right, so you will teach, no problem, this is simple future already. So he will teach, she will teach, they will teach, we will teach. All right, no problem over there.
The main problem comes with I shall teach, simple future. So we have to remember this one. So I shall teach, I shall be teaching, I shall have taught, and I shall have been teaching. So you have to remember these things, all right? So again, I teach. So if let us take another verb. I teach. Okay, I suppose I eat. All right, or I am eating. Fine. I have eaten. One thing you should remember that this one thing you should remember that I use this verb. All right. So I use this verb teach. All right. So teach. Okay. So normally what happens that we make three forms of these verbs. So three forms means one thing. Let me tell you. So one is present. Then we have past, and then another verb form is past perfect. So these three, all right. So these three forms, if I take present, all right. I'm sorry. So here present, if it is in present tense, it will be teach. The simple form is teach. So when it is in the past, it will be taught. But if it is in the past perfect, it will be again taught. All right. So we have to remember this thing, that certain verbs, all right, they don't change. Certain verbs, they don't change. Certain verbs, they don't change. So here you can see that only teach is there, and here these two in past, whether it is in the past or it is in the past perfect, they didn't change. So here also you might get confused when I say here taught is over here also and taught is over here also. All right, so which taught? This taught or that taught? ये taught होगा, ये taught होगा. थोड़ा changes, परेशानी हो रही है. Okay, now let us see another one. दूसरा जो वर्ब का फॉर्म हम लोग देखते हैं वो, जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे सपोज करो एक वर्ब है ईट. ऑल राइट, सॉरी, ईट. देन अनदर फॉर्म इज एट, and the third form is eaten. So here verb has different forms. All right, so the first form will be teach, the second form past will be taught, and the third form will be past perfect, that is taught. So here the first form remains the same, but these two forms change. They're also the same. Okay, so लेकिन यहाँ पे क्या है, what is here? यहाँ पे केवल ये teach जो है और ये दोनों बराबर ही रहता है, taught का taught ही रहता है. अब यहाँ पे तुमको देखना है क्या है कि जो दूसरा वर्ब हम ले रहे हैं वो eat, ate, eaten हो रहा है. चलो एक और देख लेते हैं. एक वर्ब हमारे पास में है जैसे cut. एक वर्ब है cut, ये हमारे प्रेजेंट में भी आ जाएगा. दूसरे में है cut, अगेन cut, और the same thing is
over here also, that is also cut. So जब तुम verb देखोगे, when you see this verb, alright, now forget this one. Now when you see this verb, so when you see this verb, alright, you will find different types of verb, One verb is there, who never changes. This type of verb never changes. Cut, put. They don't change. Another one is that only you will get only one change over here. So teach, taught. But in certain cases you will get all the changes. Eat, ate, eaten. But the thing is that if you use this verb in teach, in present form you have to use teach. If you use this verb teach in the past form, it will be taught. And if you use the same verb in the past perfect tense, it will be taught. So teach, taught. प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हो तो टीच होगा, पास्ट में इस्तेमाल करते हो तो टॉट हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हो तो फिर टॉट ही रहेगा. ठीक है. वैसे ही इसमें क्या होता है, ईट अगर कोई वर्ब तुमने कोई इस्तेमाल करना है प्रेजेंट टेंस में तो ईट रहेगा. अगर उसी वर्ब को तुमको पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना है तो एट रहेगा, और उसी वर्ब को अगर तुमको पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करना है तो वो ईटन हो जाएगा. और ये कट तो बराबर ही है. तो वर्ब का डिफरेंट पैटर्न्स होता है. एक चीज आपको ये भी ध्यान में देना पड़ेगा कि जब भी आप यूज करते हैं तो ये आपको कंफर्म कर लेना पड़ेगा कि इसका तीनों फॉर्म क्या होता है. ठीक है. नहीं तो अगर तीनों फॉर्म में आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कंफ्यूजन होना और गलती होना जरूरी हो जाता है. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होता है ये आपको देख लेना पड़ेगा. इस वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या है, इस वर्ब का पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या है, तभी आपको इस्तेमाल करने में आसानी होगा. नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी. तो अब इस्तेमाल हमको मेन हमारा इंटेंशन क्या था कि आपको ये बताना कि यहाँ पे हमने देखा कि आई ईट, चूंकि फर्स्ट फॉर्म हमने देखा, यहाँ पे हमने टीच किया था. ठीक है. या ईट किया है तो यहाँ पे हमने देखा क्या ईट है ना, तो हमने ईट इस्तेमाल किया. उसके बाद सेकंड फॉर्म हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल ही नहीं किया है ना. अगर सेकंड फॉर्म हमको इस्तेमाल करना रहता पास्ट में तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम आई एट इस्तेमाल करते. वैसे ही जब परफेक्ट की बात आती तो यहाँ पे क्या हम इस्तेमाल करते, यहाँ पे हम करते आई हैव ईटन. तो ईट यहाँ पे किया हमने इस्तेमाल, एक दूसरा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया एट, और थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे क्या किया इस्तेमाल, ईटन का. तो वर्ब हमारा एक ही है ईट, लेकिन डिपेंड करता है उसको कहाँ पे हम कैसे यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपको वर्ब का एक लिस्ट आपको मिल जाएगा किसी भी ग्रामर की किताब में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब और उनका वर्ब का डिफरेंट पैटर्न्स कैसे चलता है. तो टीच, टॉट हो गया, ईट, एट, ईटन हो गया, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा, पुट हो गया, कट हो गया. जैसे लिस्ट ऑफ वर्ब्स है, बहुत सारे वर्ब्स हैं, सारे का लिस्ट एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस्तेमाल कहाँ पे कैसे करना है. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने लेट अस कम बैक टू द इस पे आ जाए अपने टेबल पे. तो ये हमने इस्तेमाल किया था आई टीच. यहाँ पे था हमारा आई एम टीचिंग. यहाँ पे था आई हैव टॉट और आई हैव बीन टीचिंग. आई एम टॉट, आई एम बीइंग टॉट, आई हैव बीन टॉट. आई टॉट, I was teaching, I had taught, I had been teaching. I was taught, I was being taught, I had been taught. I shall teach, I shall be teaching. I shall have taught, I shall have been teaching. I shall be taught, I shall have been taught. तो ये जो हमारा है ना, ये हमारा अब ये हो गया. तो अब ये करना क्या है, हमको देखना क्या है कि एक टॉट यहाँ पे है. जो टॉट का हमारे पास दो ही है, एक टीच तो खैर फर्स्ट पर्सन सिंपल प्रेजेंट में तो आ ही गया हमारा. ठीक है. प्रेजेंट में तो आ गया टीच, लेकिन ये जो हमारा है ये पास्ट में यहाँ पे भी टॉट है. ठीक है. तो यहाँ पे भी टॉट है और फिर यहाँ पे भी टॉट है. तो ये जो दो टॉट है, ये दो टॉट हमारा कहाँ लगे, कौन सा है, ये हमारा पास्ट वाला टॉट है या हमारा पास्ट परफेक्ट वाला टॉट है. थोड़ा परेशानी लग रहा है. तो ये टॉट कौन सा है और ये टॉट कौन सा है. ठीक है. क्योंकि
ये सारा का सारा तो एक जैसा रहता नहीं है। तो वैसे केस में क्या है, अब इस वर्ब हमको चेंज करना है, ईट एट ईटन करना है, तो हमारा कौन सा रहेगा, एट लिखेंगे या ईटन लिखेंगे, कहाँ पे एट होगा कहाँ पे ईटन होगा। तो ये जो परेशानी जब आ रही है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा पास्ट टेंस वाला है ये सेकंड फॉर्म वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसे ईट होगा तो ये वर्ब का हमारा एट हो जाएगा। ठीक है, और जब हमको इसमें परफेक्ट में इस्तेमाल करना है तो वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट में, और यहाँ पे हमारा हो गया क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट। तो वैसे ही अगर मान लो कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट वाला रहता तो आई हैव ईटन हो जाता है, आई हैव एट नहीं होता है ना, तो आई हैव ईटन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता, आई एट का एट रहेगा। तो ये हमको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो वर्ब चेंज करता है वो कैसे चेंज कर रहा है, कौन सा है ये, यहाँ पे कौन सा लगेगा बराबर। तो ये अच्छा, एक चीज तो ये हो गया आपको। दूसरा हमको ये देखना है कि यहाँ पे जैसे आई टीच हो गया, एम टीचिंग हो गया, तो आई एम हमने बता ही दिया आपको, एम कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आई है तो ठीक है एम होगा, वी है तो आर हो जाएगा, ये चेंज करेगा इसके आधार पे। ही है तो इज हो जाएगा, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन में। यू है तो अगेन आर हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन का होता है ना, तो यू है तो आर हो जाएगा। फिर यू में सिंगुलर रहे या प्लूरल है, दोनों में आर का आर ही रहेगा। उस थर्ड पर्सन ही है तो ही के साथ इज लग जाएगा, शी के साथ इज लग जाएगा, इट के साथ इज लग जाएगा, दे के साथ अगेन आर लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान में देना है। आई है तो हैव हो जाएगा, वी है तो हैव हो जाएगा, यू हैव, ठीक है, ही शी इट यहाँ पे लग जाएगा हैज। ये आपको ध्यान में रखना है ना। आई हैव बीन टीचिंग, बीन टीचिंग, इसमें कोई डिफरेंस है, कोई परेशानी नहीं है। तो आई है तो हैव बीन टीचिंग, यू हैव बीन टीचिंग, दे हैव बीन टीचिंग, शी हैज बीन टीचिंग। तो ये जो तुम्हारा बीन टीचिंग हो जाएगा ये चेंजेस में नहीं होगा, यहाँ पर हैव केवल चेंज होगा, डिपेंड इस पे डिपेंड करता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, शी हैज, है। और नाम है तो नाम, राम हैज, है ना, सीता हैज। तो ऐसे कर करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ये इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ही इसमें देखना है हमको, आई एम टॉट, ऑलराइट। उसके बाद आई एम बीइंग टॉट, आई हैव बीन टॉट, I taught, I was teaching, I had taught, I had been teaching, I was taught, I was being taught, I had been taught, I shall teach, I shall be teaching, I shall have taught, I shall be teaching, I shall be taught, and I shall have been taught. एक चीज आपको और बता दें कि यहाँ पे जो टॉट है ये कौन सा टॉट है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला है। ये यहाँ पर वाला भी जो होगा ना वो आपका थर्ड वाला होगा, आई एम टॉट। ठीक है, तो ये थर्ड पास्ट परफेक्ट वाला है, ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा, है ना। तो आई एम इटन, ठीक है, कोई सेंस नहीं मिलता है, आई एम इटन, तो इस टाइप का। लेकिन ये फिर भी ये चीज है। तो ये वर्ब हमने इसलिए पकड़ा है आपका टीच का कंजुगेशन ऑफ द वर्ब, क्योंकि इसके आधार पे हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस सारे का सारा हमने एक स्ट्रक्चर में तैयार कर दिया है। एक जगह आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर इकट्ठा हो गया है। तो ये आपको परेशानी इसमें नहीं होगी, पूरा पूरा टेबल आप याद कर लेंगे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें आपको और बता दे रहे हैं, वो क्या है कि कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं ये आई टीच है, ओके, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई और हमारा वर्ब हो गया आई टीच, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगा तो फिर ये हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आई टीच है, आई टीच यू, तो यू आर टॉट, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट रहने की जरूरत पड़ती है, जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन मामला यहाँ पे ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, हम मेन ये देखना है हमको कि ये जो ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, ये हमको एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में इसको तैयार करना है, इसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ताकि आपको याद रह सके, आपके दिमाग में ये परमानेंट फिक्स हो जाए कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी हम वॉइस नहीं पढ़ा रहे हैं, एक बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हम वॉइस नहीं बता रहे हैं, हम बता क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको वर्ब, ठीक है, टेंस।
तो हम जो टेंस बता रहे हैं, तो टेंस का पूरा स्ट्रक्चर एक जगह आपके दिमाग में हो जाए, मेरा मेन इंटेंशन ये है। ये नहीं है कि हम आपको वॉइस जब पढ़ाएंगे तो फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमको यही करना है कि आप जो है अभी मेन इंटेंशन यही है कि आपको ये टेबल आपको याद रखना है, पूरा का पूरा टेबल आपके सेंस में दिमाग में रह जाए, हट जाए। मेन उद्देश्य ये है। अदरवाइज ये तो आप जो बोल रहे हैं, यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, फाइन, सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कैसे पैसिव वॉइस बना लिए। चलो उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, वो मामला हम छोड़ दे रहे हैं। तुम बोले ओके फाइन, that is okay, but the thing is that here the main intention is to make put the whole thing in one table so that you can remember all those things. So here I teach, if it is an active voice, in the passive voice it will be I am taught. Here again I am teaching, I am being taught. So the main intention is that what you have to use as a verb over here, what you have to use as verb over here, the main intention is there. ये हमारा मेन इंटेंशन है। ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये हमको देखना है। आई एम टॉट, ओके, आई एम बीइंग टॉट, ये हमारा वर्ब को मेन शो करने के लिए ये हमने टेबल आपको इस्तेमाल किया है, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टीच। ये हमारा मेन इंटेंशन है। देखिए ये तो ये अगर पूरे के पूरे टेबल को अगर पूरे के पूरे टेबल को पूरे के पूरे टेबल को अगर आप पूरे के पूरे टेबल को अगर आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो वो जो है सो आपको आसान हो जाएगा टेंस के यूज करने के लिए। लेकिन मेन अभी उद्देश्य ये हमारा है कि अब इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सो ये जो आपके पास 20 स्ट्रक्चर है, इसको आप तो पूरा याद कर लीजिए। और मैंने आपको कोशिश किया समझाने के लिए कि ये जैसे है तो ये आई है, ठीक है, तो आई के साथ टीच, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, जैसे टीच, टॉट, टॉट, ईट, एट, ईटन, तो ईटन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाएगा। आई एम टॉट, ये थर्ड फॉर्म वर्ब का लग जाएगा। आई एम ईटन, आई एम और जो भी आपको वर्ब आपको दिमाग में आए तो उसको आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म में लगाइएगा, आई एम ना थर्ड फॉर्म में आ जाएगा ये सारा का सारा। तो ऐसे कर करके आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। लेकिन अब बच गया क्या कि ये जो आपने देखा 20 स्ट्रक्चर, ये 20 स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि आपको जब मर्जी जो आपने इस्तेमाल कर दिया। सो इट डजंट डिपेंड अपॉन योर विम और योर विश that whenever you feel whatever you remember you just put it over there. So ये मामला ये है कि आपको हर का एक स्ट्रक्चर फिक्स है, जगह प्लेस फिक्स्ड है, तो उसको उसी जगह में इस्तेमाल करेंगे। तो ये जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, तो ये क्या करना है, हमको एक जगह में इस्तेमाल करना है। ये हमको एक जगह में इस्तेमाल करना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, यहाँ पे आई टीच मैं पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या हो गए, डूअर ऑफ द एक्शन हो गया। आई टीच मैं पढ़ा रहा हूँ, फाइन, आई एम द डूअर ऑफ द एक्शन। एंड यहाँ पे क्या हो गया, आई एम टॉट मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया। तो बस डिफरेंस यही है। अदरवाइज हाँ, इट विल बी यूज्ड इन द सेम प्लेस यू कैन से। ये आपको ध्यान में आपको ये रखना है। तो इस तरह से आप सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा, और याद रख कर करके आप जो है सो इसको ये यूज कीजिएगा। तो हम जो बता रहे थे ना कि वो ये जितना है ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको जो मर्जी इस्तेमाल कर दें, हर का एक प्लेस फिक्स्ड है। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे ना, उस नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि हमको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना होता है। सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। सिंपल पास्ट का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां को हमको यूज करना है।
हर जगह इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे ही इसका एक प्लेस है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी इस्तेमाल कर। द सेम वे इज ओवर हियर आल्सो। ओके, सो हियर आल्सो वी कैन यूज ओनली दैट पर्टिकुलर प्लेसेस। इस खास स्थान पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको भी खास स्थान पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये हमको अगले क्लास में देखना है। तो जैसे कि मान लो कि हम अगले क्लास में क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसका इस्तेमाल देखना है। उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल हमको देखना है अगले क्लास में। ये प्रेजेंट, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, तो हर का इस्तेमाल अलग है। वैसे ही सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट का कहाँ इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ये हमको मेन देखना है। तो ये हम अगर देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किसको अगर हमको प्रोमिनेंट बनाना है एक्टिव वॉइस को। इफ आई वांट टू मेक माई सेल्फ प्रोमिनेंट, फाइन, आई विल यूज एक्टिव वॉइस। बट इफ आई वांट टू मेक प्रोमिनेंट the other guy, all right, then again I have to use passive voice. फिर पैसिव वॉइस में एक तो प्रोमिनेंस की बात नहीं होती है कि हम खुद को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं या आपको इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है। अगर जो जिसको इम्पोर्टेंट बनाना चाह रहा है उसके हिसाब से इस्तेमाल होगा। आई टीच, यहाँ पे हम अपने आप को इम्पोर्टेंट बना रहे हैं तो मैं आई टीच होगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट हम रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर अपने आप को इम्पोर्टेंट बना रहा है तो फिर आई एम टॉट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में देखना है कि किसको प्रोमिनेंट बनाना है, पहला चीज एक। और दूसरा पैसिव वॉइस में एक चीज और है, वो ये है कि पैसिव वॉइस में जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और भी कुछ प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन वगैरह में जो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पीपल इंग्लिश स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सपोज करो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बता रहे हैं, तो इसमें पीपल क्या होगा, है ना, पीपल को तो कोई मतलब नहीं होगा। पीपल का मतलब पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे केसेस में हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जहां पे हमारा जो है सो फर्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे केस में हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें। तो वो हमारा अलग लेक्चर रहेगा, वॉइस जब डिस्कस करेंगे। तो अभी के स्टेज में हमारा बस यही है, ये टेंस का जो है पूरा का पूरा आपको समझाना मेन उद्देश्य था हमारा। तो हम समझते हैं कि इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आप एक काम करेंगे कि ये जो हमारा वर्ब है, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टीच, ऐसा कोशिश करेंगे कोई ऐसा वर्ब और पकड़ लें आप जिसके आधार पे पूरे पूरे टेबल को आप तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये तो इंटरेस्टिंग है, एक टीच है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आई ईट आई एम ईटन कोई सेंस नहीं मिलता है ना। तो आई प्ले आई एम प्लेड डजंट मेक एनी सेंस। सो यू हैव टू फाइंड आउट वन वर्ब, ऐसा वर्ब सिलेक्ट करिए जिसके आधार पे पूरे के पूरे सारे के सारे स्ट्रक्चर बन जाए। सो दैट इज अ चैलेंज टू यू, मेक इट एंड जस्ट let me know all those things. So that was a good thing to also. And those who can't find out, don't worry, वो आप ये काम करना कि आप इस टेबल को याद कर लेना और किसको कहाँ इस्तेमाल करना है इस टेबल को, ये बेसिक चीज है ना, ये बेसिक चीज है। और उसके बाद हम इस्तेमाल इसका बताएंगे, फिर आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बोलने में, अपने लिखने में, और कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारा सेकंड क्लास था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सारा का सारा 1 by 1 इस्तेमाल कर, फिर देखेंगे कुछ यूजेस वगैरह भी देखेंगे कैसे कैसे इसके यूजेस होते हैं। तो और भी हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे वैसे केस में। तो ये हमारा जो है सो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन माय शो। एंड इफ यू लाइक इट then definitely like it, share it, comment it, and whatever problem you face, please let me know. Thank you once again.